Chapter 4, the appearance of Sri Narada Muni, and text number 6. So let's go ahead. Katham alakshita pure samprapta kuru jangalan unmata mukka jadava vicharan gajasavaye. Katham alakshita pure samprapta kuru jangalan unmata mukka jadava vicharan gajasavaye. कथम अलक्षिता पौरे संप्रप्ता कुरु जंगलान उन्मता मुका जदाव विचारन गजसावये. पूजा माता जी, रीड द श्लोक. कथम अलक्षिता पौरे संप्रप्ता कुरु जंगलान उन्मता मुका जदाव विचारन गजा साहवये. अक्षय, रीड द श्लोक. कथम अलक्षिता पुरे समप्रतः कुरु जंगलन उन्मता मुका जदवत् विचारं गजसाहवये. प्रिया माता जी, गो अहेड. हरे कृष्णा. कथम अलक्षितः पौरः संप्रप्तः कुरु जंगलन् उन्मतः मुखात् जद्वत् विचारन् गजा साहवये. सोनिका, रीड द श्लोक. कथम अलक्षितः पौरः संप्रप्तः कुरु जंगलान् उन्मता मुखा जद्वत् विचारन् गजा साहवये. ओके, पूजा माता जी, गो अहेड. माता जी पढ़ लिया मैंने. आपने पढ़ लिया है? सबका हो गया? आस्था इज देयर. आस्था, रीड द श्लोक. कथम अलक्षिता पौरे संप्राप्ता कुरु जंगलान् उन्मता मुखा जदावत् विचारन् गजा साहवये. Translation and word to word meaning. Katham, how, alakshitaha, recognized, paureh, by the citizens, sampraptaha, reaching, Kuru Jangalan, the Kuru Jangala provinces, Unmataha, mad, Mukka, dumb, Jadavat, stunted, Vicharan, wondering, Gaja Sahavai, Hastinapura. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. How was he, Srila Sukadev, the son of Vyasa, recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapur, now it's Delhi, after wandering in the provinces of Kuru and Jangala, appearing like a madman, dumb and retarded. तो उन्होंने बोला कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जब सुखदेव गोस्वामी जब माता के गर्भ से निकले थे, तो immediately he moved toward the forest, ठीक है, and he entered into the city of Hastinapur, जो अभी का दिल्ली है, and he was appeared like a madman, dumb and retarded. तो बोला जा रहा है कि वहां के लोगों ने इनको कैसे रिकॉग्नाइज किया, that he was a son of Vyasadeva, the Sukadeva Goswami. We'll read the purport. The present city of Delhi was formerly known as Hastinapur because it was first established by the king Hasti. Goswami Sukadeva, after leaving his paternal home, was roaming like a madman, and therefore it was very difficult for the citizen to recognize him in his exalted position. A sage is not therefore recognized by sight but by hearing. This is a very important statement. देखो क्या statement है प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उनके जो words आते हैं, statements आती हैं, they are like striking one. And he says a sage is not therefore recognized by sight but by hearing. कि अगर कोई संत व्यक्ति है तो आप उसके appearance से उसको नहीं देख सकते हैं, but if you listen to them then you can recognize. कहते हैं अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये मूर्ख है? जब वो अपनी जुबान खोलेगा, अपना मुंह खोलेगा ना, अपने पता चलेगा बेकार इंसान है ये. तो उसी तरह से जो सेजेस होते हैं, in the 9th canto of Bhagavatam, in the 13th chapter, I think in the 43rd verse, it was stated there, the number might not be the exact, but it is in the 9th canto. One of the shloka is the purport, it was mentioned. The devotees of the Lord, अब जैसे भगवान है ना,
वो appear disappear, he has his own will. Similarly, the Shuddha Bhaktas, by their will they can be hidden or they can be shown, like people, you know. तो similarly जो भक्त होते हैं वो अपने आप को hidden भी रख सकते हैं, ठीक है, मगर हमें होना चाहिए कि if we are listening, when we listen to the sage, then we are understanding. Sage is not by the appearance but by the hearing, what they speak, what they tell us. So that is the sage, ठीक है. One should approach a sadhu or a great sage not to see but to hear him. हमें साधु को सिर्फ देखने के लिए, अरे अच्छे कैसे दिखते हैं साधु, अच्छा जटाएं रखी हैं, कंठी पहनना है, अच्छा, no, don't go with the external appearance. We have to hear the sage. It says the devotional service भी जो हमारा शुरू होता है, जो लिंब है नवदा भक्ति का, तो जो पहला लिंब है वो क्या है, श्रवणम. फर्स्ट इज श्रवण, तो श्रवण हमें सुनना है, ठीक है, कानों के द्वारा सुनना है, जो हृदय में जाता है और हृदय की शुद्धि करता है. सो इट्स बाय द हियरिंग. अब वहां पे साधु के पास जाके गॉसिप नहीं सुनने हैं, साधु के पास जाके क्या सुनना होता है, हरि कथा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अल्टीमेट वे, दैट वी नीड टू हियर फ्रॉम अ sadhu. So that what it says. So if one is not prepared to hear the words of a sadhu, there is no profit. These statements are very important. Please note it down. अगर आपके पास डायरी है या कुछ है तो please mark them in somewhere or just have the screenshots, because it's a very important statement. A sage is not therefore recognized by sight but by hearing. One should approach a sadhu or a great sage not to see but hear him. Obviously साधु के दर्शन मात्र से भी पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, मगर सही में उनके वचनों को सुनना है हमको. If one is not prepared to hear the words of a sadhu, there is no profit. If you are not ready to hear a sadhu, what you are nothing. Animals also don't listen, so you are simply an animal. So we have to hear a sadhu. Hearing the sadhu means implementing, also means following them. Okay. So Sukdev Goswami was a sadhu who could speak on the transcendental activities of the Lord. और साधु का speech कोई gossip mundane topic नहीं होता. It is the transcendental activities of the Lord. दिव्यता आती है वहां से. He did not satisfy the whims of ordinary citizens. He was recognized when he spoke on the subject of Bhagavatam. क्या होता है, जो साधु होता है वो किसी की प्रसन्नता के लिए नहीं गाता है या बोलता है, ठीक है. He was recognized when he spoke on the subject of Bhagavatam, and he never attempted jugglery like a magician. अब जो magician होता है वो कुछ दिखाएगा, जादू कला दिखाएगा. They are not like that. Sadhu means heavy. In the Mana Shiksha, it is in the 7th verse, it was mentioned that sadhu, it means heavy. अब साधु क्या होता है, जिसके पास जाके हम अपना हृदय खोल देते हैं, है ना. We open our heart to a sadhu, and what the sadhu does, we go to a sadhu, we say, sadhu Maharaj, मेरे में बहुत अपराध है, बहुत दोष है, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को इतना हिंदी के वर्ड्स नहीं आते, लाइक बहुत वन कैन से दोष दृष्टि कह सकते हो कि मुझ में बहुत दोष है, ये माया के 6 प्रभाव है मेरे पे, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन. तो ये सब बहुत लोभ, मोह, काम, ये सब बहुत भरा पड़ा है, तो कैसे इनसे मुक्ति करें. आपने अपना हृदय रखा ना उनके सामने. व्हाट अ साधु विल डू, he will take your heart and he will do the heart surgery. What kind of surgery he will do? सर्जरी कैसे करेंगे, एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, हृदय को रखेंगे, एक बड़ा सा चाकू लेंगे, टिक 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 टिक, हृदय के टुकड़े टुकड़े. Not in a practical sense, but in a sense that he will cut the knots of your all attachments. Though it's very painful. हमारी जब आसक्ति जाती है ना, बहुत तकलीफ देती है हमको, है ना. इतनी जल्दी हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते. साधु does this थिंग. अगर आपका रियल में हार्ट सर्जरी होना हो, पेनफुल तो है ना, मगर ठीक होना तो सर्जरी में जाना पड़ेगा, है ना. सो दिस इज द वर्क ऑफ अ साधु. ही इज नॉट देयर डॉक्टर. भी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, यू हैव अ वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ, आपका एक बहुत भयंकर बीमारी है, तो आपको पैसिफाई, कोई बात नहीं, अरे चिल मारो, जिंदगी 4 दिन की है, मजे से जियो, खाओ पियो, मजे मारो, चिंता मत करो. विल ही बी अ डॉक्टर और ही बी योर एनिमी who is saying you chill maro, कोई चिंता की बात नहीं, खाओ पियो जो खाओ. Even that food might not be good for you. He was not a doctor. Doctor is one, he might have to give you an injections that is painful for you, but that will cure you. So this is what the sadhu does. Okay, so sadhu is not there to like pacify you, speaking some praising words, flattering you. No, that's not a sadhu.
Outwardly, he appeared to be a retarded, dumb, and madman, but in fact, he was the most elevated transcendental personality. तो जो साधु होते हैं, why they appeared like dumb or retarded? Because they don't want to get disturbed by the materialistic. अब भौतिक व्यक्ति जब एक साधु के पास जाता है, तो क्या बोलता है? You all remember the story of Gorkishore Das Babaji? When Gorkishore Das Babaji was there, because he was a very exalted devotee, तो बहुत सारे कर्मी लोग, भौतिकवादी लोग उनके पास आते थे, कहते थे महाराज हमको वरदान दीजिए, हमें कृपा करो, ऐसा हो जाए, मेरे को नौकरी, इतना पैसा मुनाफा हो, ये हो. They were going for some material benefits, not for the transcendental subject matter. Sadhu is not at all interested in all those things. You know, एक जो भक्त है वो इन चीजों में कभी interested नहीं होता. That's why he used to sit where there are latrine. जब latrine का जो जगह होता था, toilet, public toilet, he used to sit there and chant the Hari Naam. क्यों? अब इतनी गंदगी जगह में कोई बैठ के क्यों हरि नाम करेगा? But he used to do. He says भौतिक एसोसिएशन से तो ये अच्छा है कि जो भौतिक संघ है, तो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो तो स्टूल से भी गए गुजरे हैं. It is still better. So is in that way. So that's why कभी-कभी जो साधु है, वो they seems like they appeared like retarded and dumb man for the general public, but one second, ask. So they appeared in such a way so that they don't get disturbed by the so-called world jugglery people. They are very much elevated. If one is going to inquire about the subject matter related to Krishna consciousness, that is what appeared good. Like Sutta Goswami said, Naimisharanya ke rishis ne 6 सवाल पूछे, and Sutta Goswami says this is the best questions to inquire about. You have inquired about them, so this is the best thing to inquire. Otherwise, you are just wasting your life. So that is it. Yes, Asta, you wanted to say something. Please go ahead. माता जी, I want to ask, like, वो जो गोरखेश्वर बाबा जी महाराज जी, वो जब ऐसे कोई आता था तो वो कर्ज भी करते थे ना, मतलब कैसे कहते तुम्हारा सारा मटेरियल चीज चला जाए. और जो भौतिकवादियों को पसंद नहीं आता था. हाँ, तो कहते थे अरे क्या कर दिया मैं, मतलब इसके पास जाने बेकार है. वो कर्ज कर देते थे. I remember once Prabhupada के पास भी कुछ ऐसे भौतिक लोग आए थे. They says, स्वामी जी हमें blessings दीजिए. तो Prabhupada says, your blessing is you will become like these people, those who are sitting behind me. मतलब जो उनके पीछे हुआ करते थे, जो मतलब जो भी हेड शेवन उनके डिसाइपल थे, प्रॉपर के कि तुम इनकी तरह बन जाओ. तो एंड दे वर लाइक अरे ये क्या कर दिया, ब्लेसिंग दिया है कि क्या, मतलब श्राप दे दिया. तो साधु का तो गुण यही है कि यू विल बी गेट फ्री फ्रॉम योर मटेरियल एंटेंगलमेंट. सो लाइक दैट वे. ठीक है. एनीथिंग एल्स आस्था? नो माता जी, बस मैं वही पूछ रही थी कि वो थे. Yeah, he used to do that thing. But that is an ultimate blessing. साधु का अगर कोई श्राप भी है, so that is a blessing. जैसे नारदा मुनि का नल कुबेरा मणिग्रीवा. So that's a wonderful story. I always remember. मुझे बहुत पसंद है ये story. I was really very inspired because of Narada Muni, Krishna says, I have no business with these people. Who they are, I don't know. But my devotee has said me to just go and see them. So I'm going to watch them. क्या चाहिए भाभी? Next verse. कथं वा पाण्डवेर्यस्य राजर्षे मुनिना सह संवदः समाबुद्धता यत्रैषा सत्वती श्रुतिः. Translation and purport. How did it so happen that King Parikshit met this great sage, making it possible for this great transcendental essence of the Vedas to be sung to him? अब बोला कि परीक्षित महाराज कैसे मिल गए ऐसे ग्रेट महात्मा से, इतने ग्रेट साधु से, और कैसे ये भागवतम फिर उनको सुनाया गया. What's the story behind? So it's stated here. Srimad Bhagavatam is stated here as the essence of Vedas. It is the essence of Vedas. It is not an imaginary story as it is sometimes considered by unauthorized man. कई लोग कहते हैं अरे सिर्फ कहानियां हैं इसमें. कहानियां नहीं है. This is the essence of the Vedas. So it is called the Sukha Samhita. इसको क्या कहा जाता है? सुख संहिता. अब जैसे ब्रह्मा जी ने भी भगवान के गुणगान किए थे तो उसको क्या नाम दिया गया? ब्रह्म संहिता. तो उसी तरह से भागवतम को भी कभी कभी सुख संहिता कहा जाता है. और द वैदिक hymn spoken by सुखदेव गोस्वामी, द ग्रेट लिबरेटेड सेज. ठीक है. विल मूव टू द नेक्स्ट वर्स. सा गोदोः नामत्रं हि गृहेषु गृहमेदिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस्तत् आश्रमाम्.
He, Sukdev Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. अब ये क्या बोला गया है कि किसी हाउस होल्डर, अब ये जो साधु होते हैं, दे यूज टू गो टू द हाउस होल्डर्स टू गेट समथिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, कि मतलब टू प्यूरिफाई द हाउस होल्डर्स, कि उनकी शुद्धता हो, एंड दे ऑल्सो गेट एलिवेटेड and to get something, something you can say, there's some charity like that. So and he used to stay there enough कि जब तक cow का milk हो जाए तो he was there, otherwise he just go away, and that is only to sanctify the residence. तात्पर्य में ये बताया गया है. Sukdev Goswami met Emperor Parikshit and explained the text of Srimad Bhagavatam. He was not accustomed to stay at any householder's residence for more than half an hour at the time of milking the cow, and he would just take alms from the fortunate householders. That was to sanctify the residence by his auspicious presence. अब जो एक साधु है वो घर घर क्यों जाता है कि उन घर के जो गृहस्थी हैं उनका उद्धार हो सके, कि जब एक साधु को कुछ चैरिटी दान दिया जाता है, so that help them to be purified, because otherwise grihasthis, they are so much entangled with the sense gratification, they have no time to do any pious activity. But with the sadhu's blessings, first of all तो उनके दर्शन मात्र से, और दूसरा उनको कुछ दान देके उनका भला होता है. तो ही यूज टू, ये नहीं कि अब रेजिडेंस किसी हाउस होल्डर के घर गए तो एक साधु भी वैसा नहीं होना चाहिए कि किसी, अच्छा इसके घर से तो बड़ा अच्छा मिलता है तो वहीं जाके तो रोज रोज वहीं जाके खाए, ऐसा नहीं होता साधु. ही जस्ट गो देयर, स्टे देयर फॉर सम टाइम, इफ समवन गिव्स समथिंग इट्स ओके, अदरवाइज not an issue, ठीक है. And the sadhu is very detached. I remember from Jayadvaita Goswami Maharaj, he was telling once in his lecture that क्या चाहिए भाभी? अच्छा हाँ, तो what he says, yeah, so Jayadeva Goswami Maharaj, he said in one class that the sadhu is detached, you know, वो detached होता है. तो कभी अगर एक सन्यासी किसी के घर में भी जाता है तो गृहस्थ लोग कई बार ऐसे होता है कुछ देना नहीं चाहते चैरिटी में, अरे फिर से कोई मांगने आ गया, दे डोंट गिव, तो कोई कहता है अरे वो राख पड़ी है वही दे दो, तो साधु सेज गिव दैट थिंग आल्सो, कहीं से तो शुरुआत होगी आपकी. तो ही वाज रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग व्हाटएवर द गृहस्थ गिव्स देम, because he was so compassionate to the people in general, so that at least something they will give, and charity कहीं से तो शुरुआत करे, कहीं से तो इनका दान पुण्य हो, कुछ भला हो. So that is the only purpose of a sadhu, to go to a house of a householder, to just by their appearance sanctify them, or they give up some charity that will help them to grow further in spirituality. So in that way, ठीक है. Therefore Sukdev Goswami is an ideal preacher established in the transcendental position. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders save and except to enlighten them in transcendental knowledge. कि जो प्रचारक है, देखिए ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, ये प्रभुपाद ने हमें, प्रभुपाद काफी मैसेजेस यहाँ पे दे रहे हैं कि जो एक प्रचारक होता है, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead. पहली बात, जो सन्यासी हैं renounced order में है, ठीक है, और जो डेडिकेटेड हैं इस प्रचार कार्य के लिए, should learn that they have no business with householders save and except कि हाउस होल्डर से उनका कोई लेना देना नहीं है कि उनके घर से सेविंग्स आएंगी, पैसा आएगा, अच्छा खाने को मिलेगा. नो, they have only business to enlighten them in the transcendental knowledge, ठीक है, कि उनको के ज्ञान में enlighten करना and help them to grow in devotional life, you know. So that is their only business, nothing else. And those who are after look, oh what I will get today, what I am going to have from there, that is not a sadhu. वो साधु नहीं है, वो भोगी है, वो त्यागी नहीं, वो भोगी है, ठीक है. Such asking for alms from the householder should be for the purpose of sanctifying his home, ठीक है. One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamour of the householder's worldly possessions. That is like a maya, and thus become subservient to the worldly man. अगर वैसा रहेगा तो वो भी एक बार उसको कर्मी बनने में समय नहीं लगेगा. For one who is in the renounced order of life, this is much more dangerous than drinking poison and committing suicide. कोई ऐसा करता है तो it's like drinking poison and committing suicide. If one renounced order is like that, so that is not recommended for the renounced order people. इसलिए उनको गृहस्थों के साथ ज्यादा इंटेंगल भी नहीं, मिंगल नहीं होना चाहिए. The renounced order people should mingle with the renounced order people of their own level. If they associate with the grihasthas, that is not good for them. ठीक है. We'll move to the next shloka. So one should be very careful about it. अभिमन्यु सुतं सुता प्राहुर्भगवतोत्तमं तस्य जन्मा महश्चर्यं कर्मणि च गृणीहिना.
It is said that Maharaj Parikshit is a great first-class devotee of the Lord and that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. क्या बोल रहे हैं कि अब ये परीक्षित महाराज हैं, ये फर्स्ट क्लास भक्त हैं, जन्म से ही मतलब काफी सुंदर गतिविधियां एक्टिविटीज रही हैं इनकी. सो टेल अस अबाउट हिम, इनके बारे में हमें बताइए. ठीक है. सो ये कहा जा रहा है यहाँ पे The birth of Maharaj Parikshit is wonderful because in the womb of his mother he was protected by the personality of Godhead. अब देखो परीक्षित महाराज को बचपन से ही भगवान का संरक्षण मिला है, तो one can understand he is not an ordinary soul. He was not an ordinary soul because जब उत्तरा के गर्भ में थे, तो then the Brahmastra was shot by Ashwatthama, and Krishna himself went into the womb to protect the Parikshit Maharaj. So that is a great thing. So his activities are also wonderful because he chastised Kali, who was attempting to kill a cow. To kill cow means to end human civilization. देखो ये बहुत, again, so many powerful statements coming up today. It says कि उन्होंने उनकी activities क्यों wonderful है, because he saved a Kali. He chastised the Kali who was attempting to kill a cow, because killing cow means ending the human civilization. और अभी आप देख ही रहे हो कि this is the, like, people are indulged in killing the cows, and cows are considered our mother. And in our India itself, there are many slaughterhouses, those who are dealing with the beef जो cow का मांस होता है उसमें. So that is a total degradation. तो आप देख ही रहे हैं हमारे human civilization is totally degrading. It is totally degraded. So he wanted to protect the cow from being killed by a great representative of sin. His death is also wonderful because he got previous notice of his death, which is wonderful for any mortal being, and thus he prepared himself for passing away by sitting down on the bank of Ganges and hearing the transcendental activities of the Lord. देखो, एक तो उन्होंने रक्षा किया काव का, ठीक है, पाप नहीं होने दिया. दूसरा, he got the notice beforehand. Who is so grateful that कौन इतना fortunate होगा कि जिसको पहले ही notice मिल जाए कि भाई आपके पास इतने दिन हैं, prepare करो. And moreover, he didn't wasted the moment. He immediately went to and heard the Srimad Bhagavatam. Went to the sages to inquire from them to learn what should I do now. I'm going to die in 7 days. This is the curse. And he didn't counteracted the curse also. उनको जो curse मिला, उन्होंने counteract भी नहीं किया. बोला ठीक है. He accepted. As morning also, I was asking some question to my spiritual Guru Mataji. So I was asking the question that how to not be conditional and be equipoised in all situations. So conditional in the sense, अब जैसे हमारी conditions आ जाती हैं हर sense में कि ठीक है भक्ति है तो ये होगा तो फिर मैं अच्छे से भक्ति करूंगा या करूंगी, तो बस ये हो जाए तो फिर मैं अच्छे से करूंगी. So we put certain conditions and sometimes अच्छा ठीक है आज रेस्ट कर लेते हैं तो क्योंकि थके हुए हैं ना, तो कल से फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो करेंगे. So we sometimes many times we put conditions in front of us, and I asked how to be not be like the condition equipoised. Equipoised means in every situation be neutral and equipoised, not get affected by the moods and the things. So like not get elated when the things are very good and not be saddened when the things are very bad. So how to be that? So she just said that thing, that whatever is coming on your way, just accept it. Means I asked them further that means whatever is coming on my way by Krishna, I should accept it. She said, yes, just accept whatever is coming on your way. Just do your duty. Just carry on with your duty, and whatever is coming, just go with the flow. Whatever is coming, just accept it and just do your duty. So that we need to do. Don't be like having expectations. No. So in that way, so similarly, like Parikshit Maharaj, when he got cursed, he was a great emperor. He might have counteracted, कि मेरे को कैसे कर दिया, but he just accepted. It's okay. He accepted the will of a providence, and he accepted, and he didn't waste a moment, and he went to the sages, inquired them what to do, and the result in front of us, he observed oneself in the Bhagavatam. So that is also wonderful. So during all the days he heard Bhagavatam, he did not take food or drink, nor did he sleep a moment. कहते हैं अब अंतिम क्षण है, अंतिम समय में क्या करोगे आप? जैसे I told this story to, I think मैंने पहले भी बताई, जैसे एक नाथ संत थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आता है तो कहता है कि आपका कभी मन नहीं करता पाप करने का, इतना आप भजन कीर्तन करते हो तो कभी मन नहीं करता इंद्र तृप्ति के लिए. तो एक ना संत ने बोला देखो समय मत व्यर्थ करो, मैं देख सकता हूँ तुम 7 दिन में मरने वाले हो, जाओ जाके प्रिपेयर करो. That person got bewildered. Oh, what should I do? What should I do? And he just went back to his home. So started up doing some कर्म कांडी व्यक्ति है तो भौतिकवादी क्या ही समझेगा, तो पुण्य कर्म करने लगा कुछ अच्छे से. And
Then on the 6th day this Eknath Sant visited him and asked, और अच्छा फिर और बताओ कितने पाप किए तुमने पिछले 6 दिनों में? He said, आपको पाप की पड़ी है? मैं मरने वाला हूँ कल, पाप कौन करेगा? इतना समय कहाँ पाप करने का? So that what the Eknath Swami says. He says, now you understood? We don't know when we are going to die. You are not going to die, first of all. He told them. So he says, we don't know when we are going to die. So why to indulge in sinful activities? You know, so one should be all the time in the transcendental activities. So where is the time to sleep in ignorance? Now every moment is counted, 7 days only. So no time to waste in a drinking and food and all those things. He was simply absorbed in Shravan of Bhagavatam, you know. So everything about him is wonderful and his activities are worth hearing attentively. The desire is expressed herein to hear about him in detail. तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे बताया जाएगा. Shall I move further or we can stop here? Maybe I can read up this verse, then I will stop. सा सम्राट कश्यवाहे तो पांडुनम मनवर्धना प्रायोपाविसितो गंगयम अंधताय अधिरथ श्रियम. He said, he was a great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasing the prestige of the Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of the Ganges and fast until death? तो बोला कि तो ग्रेट एम्परर थे, पूरे विश्व के राजा थे, सम्राट जिसको कहा जाता है. फिर इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो अभी कर्ज के बारे में बात नहीं ना आएगी, तो पूछे कि ऐसा क्यों किया, सब छोड़ छाड़ के तो क्यों बैठ गए उधर. तो तात्पर्य में आ रहा है, Maharaj Parikshit was the emperor of the world and all the seas and oceans, and he did not have to take the trouble to acquire such a kingdom by his own effort. He inherited it from his grandfather Maharaj Yudhishthir and brothers. तो उन्होंने इनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, ये उनको क्या कहते हैं, inheritance means from his father he got it, grandfathers. So beside that, he was doing well in the administration and was worthy of the good names of his forefathers. Consequently, there was nothing undesirable in his opulence and administration. Then why should he give up all these favorable circumstances and sit down on the bank of the Ganges? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि सब कुछ तो बढ़िया था, अब इनको तो कोई दुख भी नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर क्या हो गया कि इतने दुखी हो गए तो चले गए, तो 7 दिन सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, ऐसा क्यों किया? So they were asking the questions, why he did that, and fasting till death. This is astonishing, and therefore all were eager to know the cause. इसलिए सब लोग बहुत eager है कि ऐसा क्या हुआ था, what had happened, what is the mystery behind, huh? So shall we resolve the mystery tomorrow, huh? Hare Krishna. Yes, because we have 10 minutes, so I would like to take up some questions. If one is having, if nothing, then I will read further also. What you all people say? Shall we resolve the mystery today or tomorrow? Yes, Akshay Prabhu. What you say? Tomorrow. Okay. Let's keep the suspense. Okay, then I will take up some question and answer or any discussion, so I can take up. तो mystery कल के लिए रखते हैं, कल will resolve the mystery. Okay. Okay. Anyone having any questions, comments, or any realizations? So please go ahead. Or if nothing, then we'll stop then. Yes. Hare Krishna. अब मुझे नाम लेना पड़ेगा आप सबका कि आप खुद ही बोलेंगे? नहीं है तो फिर then I'm chanting and I'm stopping them. माताजी. Yes, माताजी, पूजा माताजी. हरे कृष्ण. कृष्णा माता मेरे को वो पूछना था कि लाइक आजकल तो जब साधु वगैरह घर आते हैं, लाइक पहले होता था कि साधु दे केम टू आवर हाउस फॉर प्रीचिंग, बट आजकल तो ये चीज होती नहीं है. तो फिर मतलब लाइक हमें कैसे पता लगेगा कि दैट्स ऑलरेडी, क्योंकि अगर हम नहीं देते तो अपराध है, और अगर देते हैं तो फिर वो कई तो ऐसे होता है जो उनको लेके फिर बाद में ड्रिंक करते हैं, वो भी अपराध है. तो व्हाट टू डू फॉर दैट, मतलब कैसे देखो, हाउस होल्डर मेंट टू बी चैरिटी, ठीक है, हाउस होल्डर में दान हमें करना चाहिए, मगर दान भी सही जगह जाना चाहिए, ठीक है. आपको कई लोग ऐसे भगवा पहन के आ जाता है, जैसे बता रहे हो कि शाम को जाके पौवा लगा लेगा, तो वो आपकी चैरिटी गलत जगह चली जाएगी और आपको उसका कर्मा भी लगेगा. तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उनको बुलाइए, अगर वो आते हैं घर पे तो कुछ प्रसाद है घर पे तो उनको प्रसाद दे दीजिए. प्रसाद मीन्स द फूड, ठीक है. नॉर्मल कर्मी फूड नहीं देना, जो प्रसाद भोग लगा होता है भगवान को, उनको वो खिला दो, काम खत्म. इफ दे आस्क फॉर मनी देन टेल देम वी डोंट हैव मनी.
If they wanted to have the prasadam, most welcome. If they don't, तो वो तो भला ही है. किसी भी जीवात्मा को भोजन प्रसाद खिलाओगे तो वो तो भला ही है ना, आप ही का प्रचार है. अगर वो सच में कोई शांत महात्मा होगा तो आपको वो ज्ञान देगा, है ना. So that is there. If it is not the Sant Mahatma, so similarly they are asking some money, they are bogus people. So better you don't give them money, simply give them food that is offered to the Lord. Okay? और यहाँ कुछ फ्रूट है, अगर खाना नहीं बना है घर पे तो कुछ फल है तो उनको जल्दी से भगवान को भोग लगा लीजिए और वो उनको दे दो, काम खत्म. ठीक है माता जी. जी. This is you. माता जी एक और डाउट था. हाँ जी. एक और डाउट था, like why some of the sadhus don't wear clothes, like you said ना that Parikshit Maharaj didn't wear the clothes, so why they So not Parikshit wearing Maharaj was wearing, Sukadeva Goswami was. नहीं sorry, Parikshit that I forgot. Yeah, Sud Goswami was. Yeah. This is not a fashion thing that they don't wear the clothes. Out of fashion they're flaunting their bodies. No. This is because for the great sadhus, they are transcendental above all the things. So वो transcendental है. So उनके लिए वस्त्र पहनना ना पहनना doesn't matter. As we studied that Sukadeva Goswami was like an innocent child. He had no discrimination between male and female. So he is not on the bodily platform. For him it's not required. But in Kali Yuga, the sadhus, they should wear the clothes. क्योंकि कलयुग में ऐसे महान संत बहुत कम है एंड पीपल की जो लोगों की दृष्टिकोण है वो भी सही नहीं है, तो वो गलत वे में चला जाता है. बट अदरवाइज वो उनका तो समय अलग था सुखदेव गोस्वामी जी का, एंड इज अबव ऑल बॉडीली कॉन्सेप्ट. सो फॉर हिम इट्स ऑल फाइन. ही डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल क्लोथिंग्स. ठीक है माता जी. जी जी. और किसी का कोई प्रश्न है? यस अक्षय, यू आर सेइंग समथिंग. यस. एक्चुअली माता जी एक थॉट था, ये ऐसा लग रहा था कि ये भिखारी लोग कितने फॉर्चुनेट होते हैं ना, उन्हें किसी चीज का टेंशन ही नहीं है. वो सीधे सीधे जाके हरिनाम नहीं होता है. लेकिन करते नहीं है और फिर बाद में उनको देख के पता लगता है इनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन फिर भी नहीं करते हैं. Actually the beggars, देखो उनका भी कंडीशनिंग है because of their karma they are into certain position. ठीक है, तो ऑब्वियसली देखा जाए तो चिंता तो उनको कुछ भी नहीं है. मतलब ऑब्वियसली वो भी वरीड होते हैं अपने खाने के लिए, सोने के लिए, उनको भी चिंता है. बट थिंग इज दे हैव नॉट, वो सिचुएशन में भी नहीं है कि दे विल बी थिंकिंग कहाँ जाऊं क्या करूं. सो दे आर लिविंग लाइक दैट वे. ठीक है, यू कैन कंसिडर देम ऑन द एनिमल प्लेटफॉर्म ओनली. दे आर ऑल्सो बॉदर्ड विद द सेम थिंग, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, सेम बिजनेस. बट यू अंडरस्टूड एक चीज और देखो कि दे आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी. बीइंग इन अ ह्यूमन फॉर्म, nothing is there that they can study the shastra, they can hear. Even Prabhupada beggars थे रास्ते में, तो Prabhupada उनको कहते थे कि आओ हमारे मंदिर में रहो, मुफ्त का खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, आपको बस हरि नाम करना है, क्या करना है, बैठो यहाँ पे हरि नाम करो. But the beggar is not concerned. वो भी बड़े शाने होते हैं. शाने इन दिस दे, उनको मुफ्त का मिल रहा है, भीख मिल जाती है तो खा रहे हैं अपने मजे से, कुछ भी कर रहे हैं, क्यों आगे भगवान की सेवा करेंगे? नहीं, they are also not inclined. So they are also less than an animal only. You know, they are, वो भी जानवर की तरह ही है. फिर चिंता मुक्ति कहाँ है? उनको भी डर लगता है, ठंड लगती है. That is there. But the thing is they also don't want to give up their attachments of begging. अपने beggar को अपना begging bowl भी बहुत प्यारा होता है भाई. हाँ, मतलब वो begging bowl क्या होता है? I remember one story. There was a person who went with the sages. तो अब सभी संत लोग थे, तो वो बेचारा भिखारी रात को सोए ना. तो संत ने पूछा कि भाई क्या हो गया, इतनी रात तक क्यों जागे हो? कहता वो जो मेरा बैगिंग बाउल है ना, मुझे चिंता हो रही है कोई ले ना जाए. भाई बैगिंग बाउल कौन लेके जाएगा? बट देखो आ सकती है, उनको भी आ सकती है. द थिंग इज दे आर नॉट कमिंग, बट द थिंग इज दे आर मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ना. इतना समझ नहीं है उनको चीजों को देखने का. आई रिमेम्बर मेरा जॉब जहाँ पे था, तो आई यूज्ड टू ट्रेवल इन अ ट्रेन ऑल द टाइम. सो वहाँ पे कई लोग पागल, आपको एबनॉर्मल पीपल भी दिखते हैं. So when I was just seeing them and I was saying the person was just roaming in a road, not knowing anything. Such an abnormal person, वही फटे हुए पुराने काले कपड़े पहने हैं. And I was just thinking कि just a waste of a human form of life. बेकार है ना human form life का. इस व्यक्ति को तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा. इसको क्या ही समझाओगे आप? उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला. 2 दिन मंदिर भी अगर जबरदस्ती ले आया तो he was not going to work out because his mental condition is gone. So that's simply waste. So we should understand that you should be grateful for your position, Akshay, that you are in a very nicer, safe position. You are an educated person. You can study the Shastra, you can chant, you can earn well that you can use in service of Krishna. You should be proud about your position.
कि एटलीस्ट उन लोगों से मैं कितना बेहतर हूँ कि मुझे में सोच है, आई हैव द थिंकिंग प्रोसेस, आई एम इन अ बेटर पोजीशन, आई कैन यूज माय दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन अ बेटर वे. दीज पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग, और उनको समझाने का भी मतलब नहीं, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. But you are fortunate enough that you have that some knowledge, you can use it. So in that way, you should consider yourself more fortunate enough, isn't it? Huh? Yes or no? माता जी, Yeah. too So much. that's clear. Okay. Yes. Anyone else? No, what is happening? Yes. Anyone else? और किसी को कुछ कहना है या कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? माता जी क्वेश्चन था. हाँ जी, बोलिए. One second, I माता should जी turn off the जैसे light because ये fluctuate कर रहे हैं. Please go ahead. 1 second, Asta. Wait. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Yes, Asta, go ahead. माता जी जैसे जो सेजेस थे वो हाँ. मतलब कि जो भागवतम श्रीमद् भागवतम डिस्कस कर रहे थे कलयुग के स्टार्टिंग पे है ना. तो मेरा क्वेश्चन था ना माता जी कि ठीक मतलब जैसे द्वापर युग से कलयुग आ रहा है तो उसमें बस मतलब जो चेंजेस लिखे हैं या फिर जो चीजें चेंजेस वो होते हैं लाइक जो सोल है मतलब और जो लिविंग एंटिटीज है वो मतलब रहता ही है ना. लाइक इफ यू सी लाइक परीक्षित महाराज को जब उन्होंने वो बुल को देखा तो मतलब वो समझ गए कि कलयुग आने वाला है. तो मतलब इससे इससे पता चलता है कि ठीक है लिविंग एंटिटीज खत्म नहीं थे, लेकिन जैसे अब हम जैसे 4 साइकिल खत्म हो गए, कलयुग और द्वापर त्रेता सत्य सब पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में क्या लिविंग एंटिटीज They remain. वही Those who are वही devotees, they लिविंग go back. जो नहीं है तो वो अनमेनिफेस्टेड फे में महाविष्णु की बॉडी में चले जाते हैं, अन्य दोबारा वापस आ जाते हैं. वहीं से अच्छा. तो साइकिल शुरू होता मतलब है कर्म चक्र का. माता जी तो जो लोग ऐसे चले जाते हैं जैसे आप बोल रहे हो महाविष्णु की बॉडी में, तो वो लोग को ये सब नहीं फेस करना होता है कि जो हेलिश कंडीशन होती है या फिर जो स्वर्ग वर्ग जो भी इनको कर्मा को फेस करना होता देखो है जब आगे. डिस्ट्रक्शन है, लाइट है मम्मा, ये फ्लक्चुएट कर रही है लाइट. क्या हुआ? लाइट ऑन कर दो नहीं तो. हाँ वो कर दिया ना जो था. नहीं मैंने नहीं की है, भाभी ने की. क्या कह रहे हैं? कर्म चक्र इज देयर अगेन. देखो जब इनहेलेशन होता है तब तो सब कुछ ही खत्म हो रहा है ना. दे ऑल वेंट बैक. ठीक है. देन अगेन जब दोबारा क्रिएशन होता है दे ऑल कम अगेन एंड देन दे गो थ्रू द अगेन साइकिल द कर्म चक्र थिंग्स. उनका अपने हिसाब से उनको दे हैव टू सफर एंड ऑल. माता जी एनिहिलेशन में सिर्फ हमारा ही एनिहिलेशन में यूनिवर्स सब कुछ खत्म हो जाता है माता जी. मतलब सारे यूनिवर्स. Yes, 1 second. Please come again. ये खत्म होने वाला है मीटिंग. I want to answer your question. Please come again. Come again. Yes, Yes, I was saying कि हर चीज unmanifested stage में चला जाता है उस समय. Everything enters into unmanifested stage then. अच्छा. वहाँ unmanifested और फिर कुछ ही खत्म हो गया ना, फिर कुछ रहता नहीं है. फिर जब दोबारा वर्किंग में आता है so everything works accordingly according to one's karma माता जी and things. मैं पूछ रही थी कि एनिहिलेशन जब यूनिवर्स के साथ होता है ये सिर्फ हमारा मतलब जैसे सभी का एक हमारा पर्टिकुलर, सभी का. तो फिर माता जी यदि वो सभी का एनिहिलेशन हो रहा है There तो are हम actually जानते माता हैं जी there are partial annihilation और like full annihilation भी है. So partial तो अब जैसे दिन रात का होता है, और एक होता है कि जब ब्रह्मा जी की कंप्लीट डेथ हो जाती है. ठीक है. तो जो पार्शियल है तो वो आई थिंक उस मुझे इतना तो डिटेल अभी नहीं आएगा, तो आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट. आल्सो वी विल बी स्टडीइंग इन द भागवतम फर्दर, सो उसमें ज्यादा डिटेल रहेगा. आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट अबाउट इट, सो बेटर वी स्टडी. हाँ मतलब वही क्योंकि आप कह रहे थे कि यदि सारे यूनिवर्स होते तो माता जी कहीं पे तो अभी सत्यलोक को चल रहा होगा, कहीं Yes. द्वापर So चल रहा this होगा. might the partial annihilation is because of the universes, and the full annihilation. Sorry, I don't know. I don't want to speculate it. Sorry, Mataji. I will get clear about it, then I will tell you. मैं speculate नहीं करना चाहती. Better I should study, or maybe we'll study in the Bhagavatam. आएगा आगे आएगा इसके बारे में भी, और maybe I will study more detail, then I will get back to you. ठीक है? I don't want to speculate about it. हाँ और वन मोर क्वेश्चन माता जी. Yes. जब एनिहिलेशन होता है तो पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम
का भी हो जाता है। यस, एनिलेशन देखो, महाविष्णु करोणोदक्ष विष्णु इज आउटसाइड ना, यूनिवर्स के बाहर, और गर्भोदक्ष विष्णु के वहां से नेबल से निकलता है जो कमल, वहां पे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है ना, अंडरस्टैंडिंग। तो हर एक हाँ। यूनिवर्स में ऐसा हो रहा है, मतलब इन एवरी यूनिवर्स देयर इज 14 प्लेनेटरी सिस्टम, तो जिस यूनिवर्स का एनिलेशन हो रहा है वहां पे इट हैपेंस। यस यस। तो मतलब उस हिसाब से माता जी हर यूनिवर्स के पास में अलग अलग देवी देवता होंगे? अलग अलग तो नहीं कह सकते, होंगे जैसे ब्रह्मा बहुत सारे हैं, तो यस, ऐसे इट इज इंद्रा, शिवा, इट इज ये सब भी यस। बहुत सारे होंगे। क्योंकि हमारे यूनिवर्स सबसे छोटा, हमारे यूनिवर्स में 4 सिर वाले ब्रह्मा है, यार से रहे। बाकी किसी यूनिवर्स में 100 सिर वाले ब्रह्मा जी भी हैं। मतलब यदि देखा जाए तो माता जी सबके 14 प्लैनेटरी सिस्टम अलग है, तो मतलब वहाँ के वो मतलब वो भी अलग होंगे ना, कितने सारे इंद्र यस, होंगे, कितने हाँ सारे जी, ये सूर्या यूनिवर्स देखो, होंगे। क्रिएशन बहुत अचंभे वाली बात है, इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स सीरियसली। आर देयर। यस। एनी फर्दर थिंग्स? और नो किसी माता का जी, कोई थैंक प्रश्न यू। है? आस्था, आई विल गेट बैक टू योर क्वेश्चन टुमारो, ठीक है? यस। यस यस, प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये Akshay, please रिगार्डिंग वही mute जो yourself for a जैसे वो timing बेगर्स because वाला noise बोल रहे echo थे ना, कर रहा तो उसमें मुझे एक और पॉइंट याद आया था। है। क्या कह रहे हो आप? प्लीज रिपीट अगेन। हाँ, तो वो बेगर्स वाला जैसे माता जी आप पॉइंट बता रहे थे ना, तो उसके यस, रिगार्डिंग मुझे भी याद आया एक पॉइंट। तो जैसे जैसे आप बता रहे थे कि मतलब एक बार मैंने राधे श्याम प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, तो वो कह रहे थे कि जैसे कोई स्ट्रीट में भी बेगर्स आते तो हमें हमें से हमसे मांगते हैं तो क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं कि अब हम मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके हमें पता है कि नहीं ऐसे दान नहीं देना है, तो हम लोग नहीं देते हैं दान। तो उससे क्या हो जाता है, बोलते ऐसा जब हम करते हैं बार बार तो हमारा मतलब हार्ड हार्टेड हो जाते हैं हम लोग, तो ऐसा भी नहीं करना है हमें कि मतलब एकदम इग्नोर ही कर दो उनको। तो जैसे आपने बताया कि मतलब या तो उनको प्रसाद दे दो, या फिर मतलब अगर उनको पैसे देने हैं तो उनको बोलो कि मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो यस, हमारे साथ, तो फिर उसके बाद पैसे दे दो, ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे बीच में मैंने मतलब बहुत बारी ऐसे किया, तो कुछ लोग कर लेते थे। तो एक बारी क्या हुआ, मतलब मैं और शिवांगी थे हम चंडीगढ़ में, तो वहां पे दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो बोलने लगे कि दे दो पैसे, तो मैंने कहा कि चलो हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ रिपीट करो फिर मैं आपको देती हूँ। तो उसने बोला ही नहीं, मैं उसको इतना ज्यादा बोली, वो बोले ही नहीं मतलब इतना ज्यादा, मैंने कहा मैं 5 रुपए दे दूंगी, बोलो, वो मैंने कहा मैं 10 दे दूंगी, बोलो, वो बोल ही नहीं रहा था, बोलता नहीं। फिर भी मैंने कहा अगर आप जब तक बोलोगे नहीं मैं दूंगी नहीं आपको पैसे। तो वही मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ लोग बोल देते, बट कहीं कहीं में नहीं होती स्वीकृति, वो इतना भी नहीं बोल पा रहे थे मतलब वो इतना अजीब लगा मुझे कि कितना ऐसे होता है। या इट हैपेंस, इट हैपेंस, इट हैपेंस। या इट इज देयर कि हमें कहीं ना कहीं हार्ड हार्टेडनेस आ जाती है जब हमें पता होता है कि इनको देना ही कुछ नहीं है। बट एटलीस्ट ये क्वेश्चन अभी पिछले दिनों भी डिस्कस हुआ था मेरी भागवतम क्लास में, मतलब गुरुदेव का भागवतम क्लास था, तो उसमें भी ये डिस्कस हुआ था कि ऐसे हम लोग हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं सोसाइटी में आप दान पुण्य नहीं करते हो। हम भी करते हैं मगर हमारा तरीका अलग है। डेट जैसे मैंने बोला कि प्रसाद हमें दे देना चाहिए या हरिनाम उनसे करवाइए, तो उस वे में वी कैन हेल्प देम, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अल्टीमेट बेनिफिट है, बट अदरवाइज वो भी कर्मा ही है कहीं ना कहीं, सो वी डोंट हैव टू क्रिएट द कर्मा, ठीक है। सो दैट इज वही मैंने बोला कि हर व्यक्ति इतना पायस नहीं है ना कि हरि नाम भी ले सके, इतना आसान नहीं है कि हर कोई व्यक्ति हरि नाम भी ले सके, उसके लिए भी सुकृति चाहिए। सो बेटर वी शुड गिव देम प्रसादम, दैट इज द बेस्ट वे टू डू। अगर आपके पास नहीं है प्रसादम, आप फल ले लीजिए, ऑफर इट टू द लॉर्ड एंड देन गिव टू देम, सो दैट यू कैन डू, ठीक है। तो वैसा आप कर सकते हैं। यस, एनीवन एल्स? और किसी कुछ कहना है? माता जी, हाँ जी माता जी। अगर लाइक हम बाहर हैं तो वो हम कैसे ऑफर कर सकते हैं भगवान को फ्रूट्स, लाइक माता जी, हम बाहर मेंटली हम ऑफर कर सकते हैं, या अपने मोबाइल में भगवान के चित्र तो होते ही हैं, या यू कैन हैव द ट्रैवलिंग जी ऑल्टर, जी जी। ट्रैवलिंग सो ऑल्टर भी आप रख सकते हैं। हाँ, वी हैव टू कीप दैट फॉर 15 मिनट्स आल्सो, या बस ऐसे ही आप वो? 5-10 मिनट के लिए रख सकते हैं, अच्छा 5 ठीक है, मिनट के लिए भी रख सकते हैं। आप ठीक है अपने माता साथ में तुलसी हमेशा रखिए, और एक ट्रैवलिंग ऑल्टर रखिए अपने पर्स में छोटा सा, ठीक है, जिसमें गुरु परंपरा और भगवान के चित्र हो। और जब भी कहीं आप बाहर हो, तो अभी जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो अगर बाई चांस कहीं प्लान बन जाता है कहीं आने जाने का, तो आप क्या खाएंगे रास्ते में? सो जस्ट हैव द फ्रूट्स, ठीक है। बाहर का कुक्ड मत खाइएगा, अवॉइड द कुक्ड फूड, have the uncooked things, and just have the traveling altar, put the tulsi in that and offer it to the Lord, so like that, ठीक है। ठीक है माता जी। ऐसा कीजिए आप। तो मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन हैव फ्रॉम आउटसाइड और द फ्रूट्स,
और जूस लाइक दैट वे। अगर कुक्ड चीजें मत खाइएगा क्योंकि चेतना में फर्क पड़ता है, तो कुक्ड फूड हमें नहीं खाना चाहिए बाहर से, ठीक है। जी यू कैन हैव द मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स यू कैन हैव, दैट यू कैन हैव। यस, एनीवन एल्स? और किसी कोई प्रश्न है? सो हमेशा अपने साथ में एक ट्रेवलिंग वाटर और तुलसी तो रखिए साथ में, ऑफरिंग के लिए, कि बाय चांस कभी आपको कहीं आना जाना पड़ जाए, कहीं वैसा रहे तो। कितने लोग बोल रहे हैं एक समय में? यस, हु इज द फर्स्ट? अक्षय बोलिए। माता जी, तो इस तरह से हमें स्विगी और जोमेटो पे जो मिलता है वो भी नहीं खाना चाहिए? नो। व्हाई डोंट यू कुक, अक्षय? I know cooking, माता जी, I do cook. Then do the cooking. Why you are eating from outside? पहली बात तो ये पता नहीं कि क्या क्या यूज करते हैं उसमें, and it's not good for consciousness also. बस Better you क्वेश्चन make a था। simple food like khichdi or something. Very simple foods you can make. Poha, like that. I know cooking. I can cook even rotis also. Yeah, you cook at your home. Don't get from outside. Zomato and all those things, they are just money making business. Now they are not giving you food. they are not giving you food. It's simply waste of money. So better you prepare something nice at your home and offer to the Lord with love and devotion. So avoid eating outside. Okay, as far as possible avoid eating outside. अगर बाय चांस बाहर जाना पड़ता है तो फल ले लीजिए या मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए, that is good. So that you can take, but don't eat cooked food from outside. Okay. Yes, और किसी का क्या प्रश्न है? माता जी ऐसे होता है? One second, one by one. Who is there? Yes, Priya, बोले माता जी। मतलब यही है, जैसे अक्षय प्रभु बता रहे थे ना, जोमेटो स्विगी, तो मैं थी तो हम लोग भी खाते थे बाहर से। तो हम लोग मतलब यही बोलते, जैसे डोमिनोज में भी बोलना कि नहीं विदाउट ऑनियन गार्लिक की पिज्जा देना, या जो भी ऐसे ऑर्डर करते थे। तो बाद में पता चला था कि जो उसकी बेस होती है उसमें भी गार्लिक यूज होता है। और पता नहीं, और फिर और जब एक बारी मतलब मैं ना वहाँ पे स्टे कर रही थी, कोटा में स्टे कर रही थी अपने भाई के साथ, तो वहाँ पे कभी कभी मतलब स्विगी से ऑर्डर कर लेते थे कि यहाँ पे अच्छा नहीं बना है, तो विदाउट अनियन गार्लिक उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शन देकर करते थे। बट एक बारी भी उन्होंने लाया था और मतलब सामने उसमें टेस्ट आ रहा था गार्लिक का, क्योंकि और वो चीजें प्योर नहीं होती, हमें क्या पता और कैसे हाथ लगे क्या लगे, तो इसलिए मतलब अवॉइड ही करना चाहिए। मतलब why to एक take a बारी तो risk? मुझे Have your उसने बोल दिया। prasadam with you. आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप साथ में जाइए। यस। आई रिमेम्बर अभी हम लोग गए थे, तो प्रिया माता जी हम लोग गए थे, अभी हमारा कितने घंटे का ट्रैवल था, मॉर्निंग आई थिंक 3:30 लेफ्ट फ्रॉम होम एंड वी हैड आवर प्रसादम विद अस। यस यस। हम लोग अपना कुकिंग करके लेके गए थे, तो रास्ते में वी हैड द प्रसादम। It's a long travel, but we had our prasadam, the kahwa and the tea, whatever we used to have it. So tea मतलब देसी चाय, दूसरी वाली मत देखना. So that we had with things with us, the fruits and all necessary things for us, because पता था traveling है, तो हम लोग पहले से अपना प्रसादम कैरी किया हुआ था, and we had it. So that's nice. एक तो outside picnic हो जाता है, अच्छा रहता है, अपना प्रसादम लेके जाना चाहिए. So that's good. Yes, anything else? आई वाज शेयरिंग दैट एक बारी मतलब जैसे वो मुझे बहुत पसंद थी चाप खाना ना, तो मतलब मैं वो जो मलाई चाप होती मैं खा रही थी, बहुत पहले की बात है। तो मैंने उनको बोला कि मतलब ऐसे अनियन अनियन मत डालना इसमें, ऐसे ही देना। तो जब मैंने खा ली उसके बाद फिर उसने मतलब उस बंदे ने मुझे खुद बोला कि अगर आप ऐसा करते हो तो बाहर मत खाया करो, क्योंकि मतलब क्लियरिटी का पता नहीं होता है। उस टाइम मुझे इतना रियलाइज हो गया यार, मतलब ये खुद मुझे बोल रहा है मैं क्या वो कर रही हूँ। फिर उसके उस दिन के बाद से मैंने नहीं बाहर खाया कभी। Yeah, we should not. अभी आते वक्त का नहीं बताया आपने, है प्रिया माता? वो कितने तो लिफाफे पैक्ड था उठाए ना थे माता आपने? जी, वो पैक्ड था ना वो। वो पैक्ड खाया था मैंने, कोई वो कुक पैक्ड तो थोड़ा खाया लिफाफे तो उठाया था आपने, वो नहीं बताया आपने कि वो भी खाया था कुछ, है? पैक्ड था वो, तो उसमें थोड़ा ना अच्छा, कुछ होता है ऑप्शन भी, पैकिंग बट वाले उस सारा टाइम माल पे अच्छा क्या है। खाना था। अच्छा तो नहीं है, बट फिर क्या करना था उस टाइम पे, और कोई ऑप्शन भी नहीं था, वो भूख नहीं लगी बताया हुई जो थी ज्यादा। पीनट खाए थे आपने, क्या हुआ उसके साथ, है? मैंने बोला था वो पैशन उस में टाइम, मत खाओ। बट उस टाइम पे ऑप्शन भी तो नहीं था ना, भूख भी लगी। फ्रूट्स तो थे, ऑलरेडी 8-9 घंटे का ट्रेवल था वो। मैं भी तो थी आपके साथ में, है? चलो वो भी बताना होता है ना, पैकिंग वाला भी नहीं खाना चाहिए,
हाँ बेगिंग नहीं, बट फिर जब इमरजेंसी फिर क्या करना है, मतलब बहुत भूख लगी फल तब खाओ, में। फल खाओ, चिप्स ले लो, दैट इज इफ फल इज तो लाइक। माता जी एपिटाइजर होते हैं, एप्पल जो होते हैं एपिटाइजर होते हैं, वो आपकी भूख को और बढ़ाते हैं, उससे भूख थोड़ी ना हाँ तो हटती, चिप्स ले कार्ब्स सकते थे चाहिए ना, वो होते भी हैं। तो सॉल्टी वाला था। हम्म। भूख तो उससे भी नहीं हाँ मिटती, चिप्स बट ले ये लो। कि चलो कुछ तो है एटलीस्ट। हम्म। दैट वाज इट। बाकी वो नहीं बताया आपने लिफाफे जो उठाए थे ना। चलो कोई ना, वो है ना, हम है ना खोलने के लिए। चलो नेक्स्ट, किसका सवाल है? ये भी बोलना है हर बार, फूड की जगह पैकिंग भी दिखानी है। ये माता जी नहीं खानी, वो कितने सालों बाद खाया मैंने उस दिन। हाँ तो खाया तो एक ही बार इतने लिफाफे उठा लाए थे आप। मैं हैरान होंगे, साइड में रखो, साइड में रखो, दिखाना नहीं पापा को। बस लाइक पता नहीं क्या होगा, इतना क्या हाइडिंग चल रहा है। चलो, यस आस्था माता जी। माता जी माता जी मैंने तो भी मतलब ऐसे 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 भी होता है ना कि जैसे हम मैं कृष्णा को ऑफर्ड कर दिए, तुलसी ऑफर्ड है, और यदि जैसे कोई फूड मिला तो, और यदि हमने उस तुलसी को उस फूड में प्लेस कर दिया इट्स तो नॉट प्रसाद बोनाफाइड होती माता जी। नहीं। ना 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 ना। नहीं नहीं, पूछ रही हूँ। हम लोग मायापुर में थे, मायापुर अच्छा। में देयर वाज अ प्रसादम, दे डोंट ऑफर द ब्रेड टू द डीटीज। वो ब्रेड नहीं ऑफर करते थे, दो दे यूज्ड टू मेक, बोलते थे ये ईस्ट है, इसको नहीं ऑफर करते, देयर वर सम कॉन्सेप्ट्स। सो हम लोगों ने ब्रेड नहीं खाया वहां पे, तो हमने बोला फिर आप दे क्यों रहे हो यहाँ पे महाप्रसाद स्टॉल पे? उन्होंने बोला यहाँ प्रसाद है, प्रसाद मिक्स हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आपने कुछ प्रसाद मतलब लिया हुआ है, ठीक है, तो आप किसी और कोई बाहर से चीज ले उसके साथ मिक्स कर दो कि बोला ये भी प्रसाद है, गलत है वो। अंडरस्टैंडिंग? अब माता जी जैसे मेरे साथ तो ऐसा कई मतलब होता है कि जैसे कभी कुछ जैसे बेहतर अब अब मान के ऑफरिंग। चलो जैसे नहीं नहीं, जैसे सेव पैक्ड हुआ जैसे ना, हम्म अब दो तीन है तो एक ऑफर किया था, बाकी के दो मिक्स कर दिए, या दैट इज तो फाइन। ये भी। हाँ, और फिर एक और या तो चीज थी अगर आप माधुरी मेंटली जैसे। जब ऑफर करते हो तो मेक श्योर यू आर ऑफरिंग एवरीथिंग। अभी आपने एक पैकेट चढ़ाया है, तो इन माइंड यू आर सेइंग कृष्णा एवरीथिंग इज ऑफर्ड। हाँ वो तो कर रहे हैं, यस, दैट इज फाइन। तो वो चीज है। एक बट और ये नहीं चीज कि थी ऑफर जैसे तुलसी ले लिया तो वो फिर हर एक में डाल दिया, चलो ये भी प्रसाद हो गया। वैसा नहीं करना। मैं तो सोच रही थी बट ये दैट एक इज नॉट बोनाफाइड। ऑप्शन है वो करके। प्रॉपर नहीं है, दैट्स नॉट कंसीडर्ड बोनाफाइड। बेटर यू मेक एन और ऑफर। और जैसे हाँ, और जैसे 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 हो गया कि अभी मेरे जैसे कभी मैं जब मुझे अभी होम टाउन में जाना होता है ना, कभी आ जाती जैसे कि अब वो लोग ऑफर कर रहे हैं ना, मतलब जैसे वो लोग मुझे फूड दे तो रहे हैं हम्म लाइक विदाउट अर्निंग वाली। अब माता जी ऐसा रहता है कि अब वो उनके घर में मैं किचन में कैसे एंट्री लूं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती वहां, तो फिर ऐसा होता है कि फिर मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, तो नहीं, आप लाइक उनको बोलो तो फिर ऑफरिंग हम करेंगे। अभी हम प्रिया माता जी के घर पे गए थे, इनके नाना जी के घर पे। सो इनकी मामी नानी, आई थिंक दे कुक्ड फूड विदाउट अनियन गार्लिक फॉर अस, एंड वी वर मेकिंग द ऑफरिंग। ऑफरिंग तो हम वो खुद ही लगा रहे थे विद द तुलसी। हाँ ऑफरिंग हम माता खुद जी, लगा रहे थे, लेकिन कुकिंग वो दे तो वर डूइंग। हाँ। बट कोई ना, आप किसी के किचन में जाके यू कांट से ओके विल कुक, नहीं वैसा नहीं हो सकता। तो वो हाँ, और वो विदाउट भी, अनियन और एक एंड वी वर मेकिंग द ऑफरिंग। और एक चीज थी जैसे माता जी के वो लोग ना मतलब वो ना जैसे एक दिन एक बार ही हुआ था कि मतलब कौन, अक्षय प्रभु जी प्लीज आई म्यूट डिड इट, योरसेल्फ यस जस्ट वर्ड। वॉइस। यस माता जी, तो वो एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे अब वो लोग को मैंने बोला तो होता है कि मैं जैसे मुझे ऑफर करना है, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए थे कभी, तो क्या किया था वो फूड को पहले ही किसी को दे दिया। अब मैं कहा इस सिचुएशन में क्या करूं, अब देखो मैं दे तो दिया तो दे दिया, मतलब नाउ यू टेक इट वट एवर यू आर हैविंग एंड जस्ट मेक द ऑफरिंग टू द लॉर्ड। और नेक्स्ट टाइम से उनको बोलना कि ऐसा ना करें। मेरे घर हाँ, पे भी ऐसा कई और बार जैसे होता है कभी माता जी, चिंता मत करो। समटाइम इट हैपेंस। अभी भोग लग ही रहा होता है, मेरे हाँ पापा घर जुगाड़ पे तो गाड़ी नहीं होते होता, हैं। व्हाट टू डू देन? घर पे तो हम्म घर पे तो Generally कम I होता skip है the meal, लेकिन either I skip the meal, or either I cook something then I offer to the Lord. ऐसे यस सिचुएशन में या तो खाती नहीं हूँ, या अदरवाइज देन आई कुक एंड ऑफर टू द लॉर्ड। दैट व्हाट आई जैसे डू। मैं सोच रही थी कि हाँ, जैसे कभी ऐसी सिचुएशन ही आ गई, जैसे अब मैं फादर को बोलती हूँ ना ऑप्शन के लिए, अब पापा उतना बोल नहीं सकते हैं किसी को कि मुझे ऑफरिंग करनी है किसी के यहाँ, तो फिर मैं पापा को ऑप्शन बोलती हूँ कि पापा आप जगन्नाथ प्रसाद ले जाओ, मतलब जो राइस होते हैं ना,
ड्राई राइस, हाँ आप उसको उसमें डाल देना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम प्रसाद ही खाओ। या दैट मतलब इज इसको ऐसे कर लो तो वो कर नहीं सकते क्या? यू कैन डू माधुरी। जैसे देखो मेरे पापा, अकॉर्डिंग टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, अब जैसे आप बोल रहे कि किसी को दे हाँ नहीं रहा बस, होता है, उस सेंस में भी यू जस्ट ऑफर टू द लॉर्ड कि अभी सिचुएशन ऐसा है नहीं है, ठीक है, अगर आपके सिचुएशन में डू यू ऑफर इट, नॉट एन इशू। और अगर वेन एवर इट्स पॉसिबल ट्राई टू कुक एट योर ओन। आप अपना खुद का कुकिंग अरेंजमेंट रखिए। हाँ You can have the induction with you and you can cook. I remember we are on the Char Dham Yatra, तो हमें होटल में खाना पड़ता था, but we had our induction with us, so we can cook and made the offering to Gaurnitai and we had the prasadam in that way. वैसे सिचुएशन तो नहीं आती माता जी वो तो, लेकिन बस सिचुएशन मोस्टली यही आती है जब हम रिलेटिव्स के घर जाते हैं ना, जैसे नाना वगैरह के घर चले गए। होम टाउन में जाओ मेक तो श्योर इतना उनको दिक्कत नहीं पहले है, ही सिर्फ बोल के नाना रखिए वगैरह आप कि के। देखो हम ऐसा ऐसा है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो वो हम अगली बोला बार से हुआ था नहीं ना, तो आएंगे। उस बार ही बोला हुआ था, तो अब चलो ठीक है, ऑनियन गार्लिक तो नहीं बनाते ठीक है, लेकिन ना उस टाइम भी क्या हुआ था, और उन्होंने मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ उस टाइम, तो पता नहीं वो फूड में ना ऑनियन था, एक मैंने पीस बताया था ना आपको, एक पीस में ऑनियन था, और पता नहीं वो चीज पहले उन्होंने कितने सारे लोगों को दे दी थी, तो फिर मैंने जस्ट कृष्णा को बोला था, कृष्णा आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत मेंटली उसको ऑफर किया था, बस मतलब लाइक मेरे पास कोई इसलिए ऑप्शन नहीं ऐसा था उस खाना खुद टाइम, क्योंकि मन भी बहुत नहीं करता ऑफर करने का, तो बेहतर है कि हाँ ऐसी नहीं सिचुएशन में करता आप मतलब खुद ही या वही। तो नहीं खाना चाहिए। अक्षय शादियों में क्यों जाना शादियों शादियों में? में तो मैं तो खाना जाती नहीं बैर शादी में। है। खाना क्यों वहां जाके, जाओ सेम अपनी मेरे शक्ल पापा दिखा के की। वापस आ जाओ। अगर जाना ही पड़ रहा है तो पहली बात तो जाओ मत, और अगर जाना पड़ रहा है किसी की बात तो जाओ, अपना काम फ्रेंड को गिफ्ट शिफ्ट दो, वापस आ जाओ। खाना ही क्यों है? बोला माधुरी जाते ही शादियों में खाने के लिए है। तो जो स्वीट्स होते हैं बस उतना खा सकते हैं। स्वीट्स ले सकते हैं, बट देखो ऑप्शन है ना, देखो ऑफर नहीं है वो, तो क्या करोगे आप? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होता है, वो बेहतर ऑफर्ड है, नहीं मैं होते जाती तो हूँ, हमारे खाने घर की में फंक्शन तो। होता है या मोहल्ले में फंक्शन होगा ना, मैं घर वालों को बोलती हूँ अगर जा रहे हो तो पहले यहाँ बना के जाओ। अगर अगर इफ आई एम हियर, मतलब नहीं बनाना है, आप लोग जाओ, आई विल कुक एट माय ओन, आई एम नॉट कमिंग। मैं जाती नहीं हूँ फंक्शंस में, आई डोंट गो। और अगर बाई चांस किसी शादी में जाना भी पड़ जाए, डोंट ईट। खाना तो आपके हाथ में है ना, आप चाहे खाओ चाहे ना खाओ, उसके लिए कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। एक और क्वेश्चन, हाँ जी। जैसे बस नॉर्मली तुलसी होती है घर में, बट जब तुलसी नहीं होती है तब क्या करें? जब तुलसी नहीं होती तो क्या करें? आपके पास कंठी है? तुलसी का नहीं। कंठी नहीं है? नहीं। नहीं है? नहीं। अरे कंठी क्यों नहीं है? होनी एक्चुअली चाहिए। मेरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है एक्चुअली, तो पूरे घर में शायद से मैं अकेला हूँ जो नहीं खाता हूँ। हाँ मैं बोल नहीं सकता, इवन अनियन गार्लिक तो बहुत दूर की बात है, नॉन वेज ही नहीं छोड़ा जाता लोगों से। तो आई अगर नहीं लेफ्ट है, दैट। देखो अगर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, आपके पास कंठी भी नहीं है, तो जस्ट रिसाइट द तुलसी प्रणाम मंत्र बिफोर हैंड एंड देन डू द ऑफरिंग। अंडरस्टूड? इन केस इफ यू डिडंट हैड एनीथिंग, वैसे तो होना चाहिए, ठीक है, होना आप रखिए, हमेशा कंठी रखिए साथ में, क्योंकि कंठी को भी टच करके आप, तुलसी है ना, तो यहाँ तो आप तुलसी दल अपने साथ में रखिए कहीं से, तो डेट शुड भी देयर। अगर नहीं है तब उस सिचुएशन में ऐसा करना, बट अदरवाइज इट्स नॉट, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर नहीं है कुछ भी, देन यू कैन डू इन दैट वे, रिसाइट प्रणाम मंत्र और तुलसी महारानी, देन यू डू। ओके, अंडरस्टूड? But do make sure to have tulsi dal with you. Okay? Premati says, I eat full stomach at home before going to marriage. ऐसा करा करो, घर से खा के जाया करो। चलो, next anyone else? बड़ा खाना खाना हो गया अब, और कुछ है किसी का? और कोई प्रश्न? Yes. माधुरी, टंग कंट्रोल होने से सारी सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं। SSG Vado, beginning with the tongue. If the food habits are Yes. good, your these three things are in a line. Like हमारा जो mind है, the stomach and the genitals, they are in the line. If your food is like proper Krishna conscious, so everything, all senses are controlled. और अगर वो नहीं है तो चेतना में बहुत फर्क पड़ता है. We need to be very careful about it. So even प्रसाद में भी enjoying mentality से नहीं खाना चाहिए उसको, ऐसे लेना चाहिए, भगवान की कृपा है उस हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है? So that how we need to have the prasadam.
So not in a enjoying mentality. No. Don't be in a माता जी enjoying कभी mentality. कभी Honor the prasad. Yes, Mataji. माता जी कभी कभी होता है ना कि कुछ फूड्स होते हैं जैसे अब कुछ हो सकता है अभी तो लाइट ऑन माता कर जी दो कभी कभी हाँ यस हम ऑफर तो करते हैं लेकिन एक चीज है कि जैसे मेंटली होगा जैसे अब देखो तो ऐसे टेंडेंसी कैसी होती है कि अरे मतलब भगवान खा रहे फिर जल्दी मैं खाऊं फिर तो वो तो आपने तो पहले ही खा लिया उसको हाँ फिर ये चीज को कैसे हम कम कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस हाँ ऑल द टाइम तो थिंक नो पहले इट्स फॉर द लॉर्ड यस यस और बाय मतलब प्रैक्टिस इट कोशिश कैन तो पूरी हैपन करते हैं मदद की हाँ पे पर कैसे कभी कभी मुझे लगता है फिर मुझे खुद को सोच के बुरा लगता है किसी को शर्म करनी चाहिए शर्म तो करनी चाहिए है ही बेशर्मी वाली बात है हाँ So तो that फिर is there. वही Actually, it's in karma yoga. Karma yoga means the things you like to eat and you offer it to the Lord. This is karma yoga. And bhakti yoga is you prepare what Lord likes and you're doing it for him. And then that you तो फिर accept it. how you will know Mataji that what Lord likes See, how you whatever will is know seasonal, you offer it to the Lord na? With your love and devotion. Whatever is seasonal, you offer it to him. जो भी सीजनल अवेलेबल yes है मार्केट में yes यू ऑफर दैट टू हाँ ये नहीं कि ये तो मुझे पसंद नहीं मैं नहीं खाती करेले या यस यस माताजी बस मुझे कल ही याद आया कि जैसे यहाँ बेर होती है ना जिस सीजन में तो बस मैं कल ही उन्होंने अचानक से थॉट आया कि लाइक बेर और फिर जगन्नाथ विल लव लाइक तो मैं कल गई थी 1 घंटा पूरा मतलब हमारे घर के थोड़ा दूर पे खेत है ना उधर पेड़ होते तो तीन चार पेड़ इतना सारा कलेक्शन करके आया था मैं बेरों का मैंने कहा हाँ अब लो अब खाओ आप तो वो चीज अच्छी थी मधु जी Yeah, but one should do in that. ठीक है, whatever is available according to season, offer it to the Lord. Not that I don't like to eat this, I will not offer. No, whatever is available, हाँ offer to the Lord. ठीक. यस मधु जी Okay, anything else? Anyone having? और किसी को कुछ कहना है? Nothing. Prabhupada used to meditate. आज यशोदा माई ने कृष्ण को लंच में क्या डाल के दिया होगा? Prabhupada used to meditate, you know. Yeah, so that's it. Okay, if nothing, बहुत खाना छाना हो गया हमारे भी यहाँ पे भोग लग रहा है तो थोड़ा प्रसाद ही पाएंगे बाद में आप सभी प्रसाद पाइए ठीक है सो विल टुमारो देयर इज अ स्पेशल क्लास टाइमिंग आपको मैं अनाउंस कर दूंगी इट माइट बी इन अ डे टाइम रात को शायद मैं क्लास ना लूँ कल और आज इवनिंग में 2 क्लास है सो उसके लिए नोटिफिकेशन आई विल टेल यू ऑल ठीक है टुमारो देयर इज अ क्लास ऑन शिक्षा अष्टकम so that will be timing I will let you know so we'll stop here anything else किसी को कुछ कहना है किसी का रह गया तो कसर निकाल लो पूरी अभी भी कुछ रह गया तो हाँ टाइम तो बड़ा ले लिया आप सबने कुछ कहना है और किसी को नहीं कहना है चलो ठीक है फिर let's chant 3 times हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे प्रसाद मिलेगा इसके बाद में तो आप जब कर चैंटिंग कर सकते हैं साथ में घर में बना होगा ना सबके तो थोड़ा बोल लूं अनम्यूट करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे I हरे remember once I think I was at Priya Mataji's home तो हम लोग कहीं गए हुए थे हम लोग टेम्पल से आ रहे थे एंड माता जी और भी कहीं गए हुए थे इनकी मम्मा और वो लोग तो अपनी बहन के घर पे खा पी के आए थे और मैं शाम को आई मेरे को शायद यहाँ कीर्तन के लिए गए थे इवनिंग आई वेंट टू मेट नलन माता जी तो मुझे लेट हो गया घर आते आते एंड आई वाज लाइक आई एम हंग्री तो हम लोगों ने तो खाना बनाया नहीं क्योंकि हम वहां से खा के आए हैं तो मुझे तो बहुत भूख लगी है तो वो लेकिन अभी कीर्तन करना तो हम कीर्तन करने के तो माई साउंड वॉज वेरी लो तो माता जी देन टोल्ड मी डोंट वरी कुछ ना कुछ मिल जाएगा अभी कीर्तन करो then I like started out doing kirtan nicely and she made sure to have some prasadam for me so that's why I'm saying कि प्रसादम है आपके घर में चिंता मत करो थोड़ा हरि नाम ले लिया करो okay गंधा श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय all the assembled devotees की जय thank you so much see you all in the evening for Bhagavad Gita class Hare Krishna everyone